سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آنند فانند میں یہ پروگرام ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے. کبھی آپ لوگوں نے سنا کہ آنند فانند میں پروگرام نہیں نا؟ اور اتنا بڑا مجمع کا ہو جانا اکٹھا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا عقیدہ اور یہ ایمان بول رہا ہے کہ یہ بریلی والے تاجدار امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بین ہے اور یہ انہی کا فیضان ہے کہ اتنا بڑا مجمع کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مفتی اعظم ہند، فیضان تاج الشریعہ علامہ سید ضیاء الحسن صاحب ہاشمی. بہت خوب، بہت خوب حضور، بہت خوب. یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کے نام سے دے رہے ہیں. بولو سننے کے مزاج میں ہو، ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، زور سے بولو یا رسول اللہ. اللہ ماشاء اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ممبر رسول پر رونق اسٹیج ہمارے علماء اہل سنت. اگر میں خاموش ہو جاؤں تو آپ ٹاور میں لا رہا ہوں، اور جب آپ ٹاور میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ہاشمی بھی پاور میں آئیں گے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج میں کئی دنوں سے میں پروگرام کر رہا ہوں. اور دیکھیے ہمارے شہزادے بالکل میرے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ ابو آپ کو زور سے نہیں بولنا ہے. دیکھیے داہنے بھی پورے باڈی گارڈ کے ساتھ ہیں جی. اب بالکل اس کو آج سنبھل کر بولنا ہے، چونکہ ایک طرف آل رسول ہے اور ایک طرف عاشق رسول ہے. کیا بات ہے، بہت سے بولو سبحان اللہ. آج ہمارے اور آپ کے درمیان میرے برگنیا کے مسلمان ہی نہیں بلکہ پورے باقا ضلع کے مسلمان میرے بھائیوں آج بہت خوش نصیب ہے آپ کہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان حضرت علامہ مولانا رئیس احمد سیاری صاحب قبلہ رونق اسٹیج ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان حضرت علامہ شمس الدین صاحب قبلہ بھی ہے. میں صرف علماء کا نام لوں اور یہ بڑھاتے رہیں بالکل اے ٹی ایم کھلا ہوا. جانتے ہیں صاحب نے اتنا پیسہ دے دیا شاعر کو کہ صبح میں اٹھا، صبح اٹھنے کے بعد بولتا یار کہیں کا بھی پیسہ نہیں رکھا، سب رات میں دے دیا، جو ہونا تھا سب ہو گیا. میرے دوستوں اب آپ دیکھیں اور بھی سارے علماء ہیں. حضرت علامہ مولانا عباس صاحب قبلہ بڑی چند زبان رکھتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ برگنیا کے مسلمان زندہ باد، تو فوراً انہوں نے جو ہے ٹوک دیا کہ نہیں، باقا بہار کے مسلمان. کیا بات ہے، یہاں گریڈی کے ہیں کلکتہ کے ہیں، اسی لیے میں نے کہا ہندوستان کا. لیکن ابھی تو باقا کا کہا جائے گا نا. اللہ ماشاء اللہ ہمارے حضرت علامہ مختار عالم صاحب رضوی صاحب بھی ہیں موجود. علماء کا نام لوں تو یہ رات ختم ہو جائے گی، لیکن علماء کا جو نام میرے ساتھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستوں آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آج علماء کی زیارت کر رہے ہیں. یہ موقع بار بار نہیں ملے گا.
जब मैं बांका जिला में जब मैं आता हूँ तो हर घर में किसी एक आलिम को देखता हूँ, हाफिज कुरान को देखता हूँ, कारी कुरान को देखता हूँ। ये तो बुजुर्गों का फैजान है। बांका से लेकर भागलपुर हर घर में एक एक बच्चा हाफिज कुरान देखता हुआ ये बुजुर्गों का फैजान है। और जब मैं इस इलाके में आता हूँ तो हकीकत बता रहा हूँ, मेरी तबीयत बड़ी खुश हो जाती है। तो जब मेरी तबीयत इतनी खुश होती होगी तो आप जब किसी मोटरसाइकिल में जाते होंगे और हाफिज कुरान के चेहरे पे नजर पड़ती होगी या आलिम दीन के चेहरे पर नजर पड़ती होगी या किसी मुफ्तियाने किराम के चेहरे पर जब नजर पड़ती होगी तो आपको कितनी खुशी होनी चाहिए। और ये सवाब ही सवाब है, जितना आप अपने माथे की निगाहों से उलमा की ज़ियारत करोगे आपको उतना ही मसलक आला हजरत और मायाले सुन्नत बांका के सुन्नी हुसैनी मुसलमान बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। ताजिब अली शर्त है हर इल्म से पहले, ताजिब अली शर्त है हर इल्म से पहले। ऐ लोगों किताबों से विलायत नहीं मिलती, ऐ लोगों किताबों से विलायत नहीं मिलती। सजदों में रहे चाहे वो मर जाए, हरम में सजदों में रहे चाहे वो मर जाए, हरम में सामात के कट्टारों को जन्नत नहीं मिलती। जन्नत नहीं मिलती। ये देखिए हमारे हजरत अल्लामा मुफ्ती मुस्तकीम साहब का बना क्या कहने, जब शेरवानी पहन लेते तो आप खूबसूरत लगते हैं। अभी तो मैं आपको टावर में ला रहा हूँ, अभी पावर बाकी है और जानशीन मुफ्ती आवाज़ ही तशरीफ लाने वाले हैं। जोर से कहिए यार क्या खुश नसीबी है होगी कि एक तरफ आले रसूल और एक तरफ आशिक़े रसूल। आले रसूल के मर्तबे को किसने बताया? बरेली का इमाम अहमद रजा। इसलिए तो मैं पूरी चैलेंज के साथ बैठा हूं कि अजमेर के ख्वाजा ने दीन फैलाया है, बगदाद के गौसे आजम ने दीन फैलाया है और बरेली के इमाम अहमद रजा ने ईमान बचाया है। मंजिल तो नहीं, मंजिल के निशान तक नहीं मिलता है, मंजिल तो नहीं, मंजिल के निशान तक नहीं मिलता है जब तक सैयद की क़यादत नहीं मिलती। जब तक सैयद की क़यादत नहीं मिलती हर दर पे गुनहगार को इज्जत नहीं मिलती। हर दर पर गुनहगार को
इज्जत नहीं मिलती, और मिलती है तो हस्बे जरूरत नहीं मिलती। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा अल्लामा रईस साहब किबला माशाअल्लाह, इन्होंने न जाने कितने शागिर्दों को पैदा कर दिया। हक है। जोर से बोलिए ना। कि आज इस इलाके में बहुत पुराने आलिम हैं और बहुत सलाहियत आलिम हैं। अरे हमारे उलमा भी गवाह हैं। अरे जोर से बोलो। मैं जब आ रहा था तो मसलके आला हजरत का नारा लग रहा था जी, और हजरत भी आए तो मसलके आला हजरत का नारा लगा कि नहीं? बोलो ना, लगा ना? मसलके आला हजरत। और एक बात मैं बताऊं दोस्तों, हुजूर जमाले मिल्लत क्या कहने हैं। जब हमारा पढ़ने का दौर था और उस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में मैं पढ़ रहा था, तो हमारी जब पढ़ाई जब मुकम्मल हो गई, जब हमारी आलमियत की पढ़ाई जब मुकम्मल हो गई, तो उस वक्त हजरत बिल्कुल नौजवान थे, दाढ़ी पक्की, दाढ़ी बिल्कुल काली थी। और जब मैं हजरत से मुलाकात के लिए मैं गया और हजरत सदर साहब के यहाँ तशरीफ फरमा थे और बहुत सारे लोग थे, तो हजरत मुझे देखकर खड़े हो गए। तालिबे इल्म का दौर था, उस वक्त जमाना था। तो घर वाले ने पूछा कि हजरत हो सकता है कि किसी जरूरत से अंदर जाएंगे। तो हजरत से पूछा कि हजरत आप अंदर जाएंगे? कहा कि नहीं नहीं, ये सैयद ज़ाते हैं, ये आले रसूल है, मैं इनको देख कर खड़ा हूँ। और मुझको बिठाया और बिठाने के बाद बगल में कहा कि सैयद साहब के लिए चाय लेकर आइए। उस वक्त हजरत की दाढ़ी काली थी, बिल्कुल नौजवान थे। और जानते हैं, जिसने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को नहीं देखा, हुजूर जमाले मिल्लत को देखा। बोलो, हम सभी है मुफ्ती आजम हिंद। क्या कहने हुजूर जमाले मिल्लत, ऐसे वैसे शख्सियत का नाम जमाले मिल्लत नहीं है। हमें जमाले मिल्लत तो आला हजरत का फैजान है। क्या बात है, माशाअल्लाह। ये तो आला हजरत का दाइन है, मुफ्ती आजम हिंद का करम है। अल्लाहू अकबर। देखिए बादशाह आए हैं, क्या कहने हैं, बादशाह इतने बड़े शख्सियत के मालिक कि आज पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल सिक्के राजी वक्त की तरह चल रहे हैं। और जानते हैं कि एक इनकी मैंने करामत देखा हजरत, मैं अपने तालीम के दौर में, कि हजरत का माइक उतनी दूर पर और हजरत यहाँ खड़े होकर जो है तकरीर कर रहे हैं, माइक उतनी दूर पे। उस वक्त मेरे वालिदे गिरामी हुजूर अतीके मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह भी उस स्टेज पर थे। और जब देखा तो हजरत 2 घंटे तक आपने फैजाबाद की सरजमीन पर, वहां की स्टेज पर जब आप खिताब करना जब शुरू किया, तो 2 से 2.5 घंटे तक आप खड़े खड़े बोलते ही बोलते रह गए। उस वक्त हजरत को देखा था हमने, जवानी के आलम में काली दाढ़ी देखा था। अल्लाहू अकबर, गौर करने का मकाम है। और आज हमारे आलमियत की सनद पर हुजूर जमाले मिल्लत का दस्तखत है। क्या बात है, माशाअल्लाह। जो मैं बचपने में देखा था हजरत को, वो आज भी कल भी हजरत जमाले मिल्लत मेरे साथ थे और आज भी जमाले मिल्लत मेरे साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत।
शरीयत हजरत अल्लामा जमाल रजा खान नूरी कादरी जान नशीर मुफ्ती आजम हिंद बरेली शरीफ। और आगे बढ़ते चलो, मसलके आला हजरत कहते किसे हैं? हजरत अल्लामा शमसुद्दीन साहब, तवज्जो चाहूंगा। मसलके आला हजरत कहते किसे हैं? जगर जगर, नगर नगर, शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, जिला जिला, सूबा सूबा, हर इलाके में देखो मसलके आला हजरत का नारा लगता है। जहाँ देखो मसलके आला हजरत का नारा लगता है। आप बिहार जाओ तो मसलके आला हजरत का नारा लगता है, बंगाल जाओ तो मसलके आला हजरत का नारा लगता है, झारखंड जाओ तो मसलके आला हजरत का नारा लगता है, उड़ीसा जाओ तो मसलके आला हजरत का नारा लगता है, गुजरात जाओ तो मसलके आला हजरत का नारा लगता है, महाराष्ट्र जाओ तो मसलके आला हजरत का नारा लगता है, एमपी जाओ तो मसलके आला हजरत का नारा लगता है, उत्तर प्रदेश जाओ तो मसलके आला हजरत का नारा लगता है, हमें डगर डगर, नगर नगर मसलके आला हजरत का नारा लगता है। आखिर क्यों मसलके आला हजरत कहते किसे हैं? मसलके आला हजरत है क्या चीज? तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि एक आशिके रसूल को देखा कि सर पे चादर लिए तो से आदम के तुरबत पर हाजिर हुआ। मैंने कहा मेरे सरकार, दुनिया ने उंगली उठाकर कहा कि बरेलवी जा रहा है, दुनिया ने उंगली उठाकर कहा कि बरेलवी जा रहा है, तो से आदम के तुरबत पर हाजिर हुआ। मैंने कहा मेरे सरकार, मुझे कादरी क्यों नहीं कहते, मुझे बरेलवी क्यों कहते हैं? वहां से चला हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के तुरबत पर सर पे चादर लिए खड़ा हूँ। मैंने कहा मेरे सरकार, मुझे हबीबी क्यों नहीं कहते, मुझे बरेलवी क्यों कहते हैं? वहां से चला हुजूर हाफिज़े मिल्लत के आस्थाने पर चादर लिए खड़ा हूँ। मैंने कहा मेरे सरकार, मुझे हबीबी क्यों नहीं कहते, मुझे बरेलवी क्यों कहते हैं? वहां से चला हजरत आले रसूल की बारगाह में सर पे चादर लेकर खड़ा हूँ। मैंने कहा मेरे सरकार, मुझे बरकती क्यों नहीं कहते, मुझे बरेलवी क्यों कहते हैं? वहां से चला हजरत सदरुल अफादिल, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ऐनुद्दीन मुरादाबादी की बारगाह में सर पे चादर लिए खड़ा हूँ। मैंने कहा मेरे सरकार, मुझे नईमी क्यों नहीं कहते, मुझे बरेलवी क्यों कहते हैं? वहां से चला हजरत निजामुद्दीन औलिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में सर पे चादर लिए खड़ा हूँ। मैंने कहा मेरे सरकार, मुझे निजामी क्यों नहीं कहते, मुझे बरेलवी क्यों कहते हैं? सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी के तुरबत पर हाजिर हुआ। मैंने कहा मेरे सरकार, मुझे अशरफी क्यों नहीं कहते, मुझे बरेलवी क्यों कहते हैं? तो मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी के तुरबत से आवाज आई, कहा नादान, पूरी दुनिया का मुसलमान, जोर से टावर में आओ तब ना पावर में आएंगे। मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी के तुरबत से आवाज आई, कानादान, पूरी दुनिया का मुसलमान, कान खोल कर सुन ले, सुन्नी कहीं भी रहेगा, सर पे चादर लेगा, बरेलवी कहा जाएगा, अमेरिका में रहेगा, सर पे चादर लेगा, बरेलवी कहा जाएगा, बांग्लादेश में रहेगा, सर पे चादर लेगा, बरेलवी कहा जाएगा, वालिदैन के कब्र पे फातिहा पढ़ेगा, बरेलवी कहा जाएगा, चहलुम करेगा, बरेलवी कहा जाएगा, तीजा करेगा, बरेलवी कहा जाएगा, मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम पढ़ेगा, बरेलवी कहा जाएगा, वालिदैन की कब्र पे फातिहा पढ़ेगा, बरेलवी कहा जाएगा, या नबी सलाम अलैह पढ़ेगा, बरेलवी कहा जाएगा। अब वहां से चला गरीब नवाज के तुरबत पर हाजिर हुआ। मैंने कहा मेरे सरकार, मेरे गरीब नवाज, मुझे चिश्ती क्यों नहीं कहते, मुझे बरेलवी क्यों कहते हैं? तो गरीब नवाज के तुरबत से आवाज आई, कानादान, पूरी दुनिया का मुसलमान,
के इमाम अहमद रजा ने दिया। तकबीर, नारे रिसालत। बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो, रजा के नाम की तारीफ होती है तो होने दो। माशाअल्लाह। दुनिया में कोई ऐसा नर नहीं था कि जो उसका पंजा तोड़कर चादर के जवाब का फतवा देता। ये बरेली के इमाम अहमद रजा ने दिया। इसीलिए वलियों ने ये तय कर लिया, चादर मेरी तुर्बत की होगी, अकीदा दिया हुआ नबी का होगा, और चादर के जवाब का फतवा ये बरेली के इमाम अहमद रजा का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलक आला हजरत फतवाए रज़विया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा रईस साहब क़िबला, शेखुल हदीस मदरसा खैरिया नज़ामिया सासरा। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरम नहीं हो रहे हैं, सुभान अल्लाह। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है? सरकार पुकारेंगे गुनहगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है? और परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलादे पैगंबर का वफादार कहाँ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहरीर से सर जो काट दे दुश्मने दीन का, अहमद रजा सा कोई कलमकार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जानशीर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के नवाब हज़रत अल्लामा जमाल या खां साहब क़िबला तशरीफ लाने ही वाले हैं। आए हैं, क्या कहने हैं। और आप बरगुनिया के लोग कितने खुशनसीब हैं, और जितने लोग आए हैं सब खुशनसीब हैं कि भाई तारीख लेने के लिए लोग लाइन लगा कर सालों भर। मैंने पिछले बार जब आया पर साल 11वीं शरीफ में यही किया, हजरत की खानकाह में सारे लोग थे, हमारे इसराइल भाई वगैरह और हमारे अल्लामा मुख्तार साहब क़िबला सारे लोग थे, और ढोरिया तरी और बरगुनिया के लोग थे। हमारे वो ढोरिया तरी के इमाम साहब कारी रियाजुद्दीन साहब भी थे, इल्ला माशाअल्लाह। मैंने जब कहा, इन लोगों ने कहा कि हजरत की तारीख लेने के लिए 4 आदमी को जाना होगा। हमने कहा मैं यार, हजरत की तारीख लेने के लिए 4 आदमी को जाना होगा, और अगर हजरत खुद से तारीख यहाँ के लिए दे दे तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखो लोग इस इंतजार में थे, ये मशवरा लोग कर रहे थे कि हजरत की तारीख लेने के लिए जाना होगा, जाना होगा। अब इसके लिए पैसा इकट्ठा किया जाए, किराया वगैरह सब इकट्ठा किया जाए, ये बात हुई। लेकिन वाह अरे मेरे गौसे आजम, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वाह अरे पट्टाद वाले मेरे ताजदार सैयद ज़ियाउल हसन हाशमी की दुआ को सुन लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम का वसीला दिया, रब ने मेरी दुआ को कबूल किया। सुभान अल्लाह, और सुभान ऐसा हुआ अचानक हजरत कहते हैं कि मैं बरगुनिया आना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरगुनिया से मुराद की इलाके में बरगुनिया आ गए, समझिए पूरा इलाका। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा इलाका। और ये बताइए कि पहले सुन्नत ये आपकी बात पे थोड़ी आए हैं, अब्बा ये आला हजरत के खानदान के आला हजरत की औलाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी मोहब्बत में अरे चीज